Everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 16th and 17th of November. Session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about digital personal data protection rules. Then we are talking about Vice President of India CP Radhakrishnan, who inaugurated the 30th edition of CII Partnership Summit, that was from 14th to 15th of November in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Next thing we are talking about IntelliPad. They have become a partner with India AI Mission. And then CBFC, they have launched multilingual model on Cinepraman portal. What is this portal? We will be discussing this, and many more news will be discussed in today's video, students. So stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Move to national affairs, students. The first news is MEITY has notified the digital personal data protection rules for 2025. Right? These rules, they have been launched by MEITY, which is the ministry. It is MEITY. Correct? And these are your digital personal data protection rules that will be operationalizing the Digital Personal Data Protection Act of 2023. If we look at the rules here, you can see rule 1, 2 and 17 to 21, they will be coming into effect from 13th of November. That will cover the Data Protection Board's constitution and procedures. Then rule 4, effective from 13th of November, it is for registration and obligation of consent managers. Then rule 3, 5 to 16 and 22, 23, effective from 13th of May, that is from 2027 onwards, right? That is 18 months later from the rules that will be coming into effect on 13th of November, right? It will be covering core obligations such as your consent, notices and data breach reporting. See students, with the rise of AI, we will be seeing that data is quite important. Data is like gold now, right? More of the data a company holds, the more control they will hold over AI, as they will be able to train better large language models using those data. Correct? So these rules, these are important for making sure that the personal data is secure. Next is Vice President CP Radhakrishnan has inaugurated the 30th CII Partnership Summit from 14th to 15th of November. What is CII? Confederation of Indian Industry. And this is the 30th CII Partnership Summit that will continue till 15th of November in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. And Union Minister Piyush Goyal virtually laid the foundation stone for Drone City and Twin Space Cities in Andhra Pradesh. These both are important, students, right? So question can be asked, where was Drone City and Twin Space City inaugurated or laid the foundation stone for which was laid down? It is Andhra Pradesh, right? Then this 30th CII Partnership Summit was held on a theme. What is the theme? Technology, trust and trade, navigating the new geo-economic order. Correct? Take a note of this, students. Then if we talk about this drone city, it will be spanning across 300 acres in Orvakkal in Kurnool, Andhra Pradesh, and it is designed to become India's central hub for UAVs, that is your unmanned aerial vehicle, drone innovation, manufacturing, skilling and certification. Here the financial support of Andhra Pradesh will be provided. They will offer 20% capital subsidy and 100% reimbursement of state goods and service tax, along with fast track approvals and ready plug and play infrastructure. Right, students? And similarly, Twin Space Cities, that is a pair of integrated high-tech located in Tirupati and Sri Sathya Sai district of Andhra Pradesh, that aims to make Andhra Pradesh the space tech capital of India. Moving on, students. Next is IntelliPad. This is one of India's leading AI-driven learning and upskilling platform. They have partnered with India AI Mission to launch Yuv AI for All, right? That is Youth for Unnati and Vikas AI for All. This is a program that is aimed at accelerating the AI literacy across India, as the skilling will be increased here. Skilling will be imparted to the youth, to the students, so that they can become job ready. Right? When they go to the industry, their skills, they match with the
job requirement, right? Hence, this partnership has been done here. Next is CBFC, that is your Central Board of Film Certification. They have launched multilingual model on e-Cinepraman portal. What is this? Cinepraman portal. It is aimed to digitize and streamline the film certification process for the Indian film industry. This new model, it is introduced as an optional feature that is in addition to the existing processes, enabling the applicants to submit films in various languages through a single unified application, significantly reducing the procedural duplication. Right? Hence, this CBFC, they have launched this multilingual model on e-Cinepraman portal. Next is Union Minister Dharmendra Pradhan, who is our Education Minister, has inaugurated AI Incubation Center at DPS in New Delhi. DPS is your Delhi Public School at RK Puram in New Delhi. This AI Incubation Center was inaugurated. Take a note of this, students. Right? This incubation center has been developed by Voice, Video, Data and Network Technologies Private Limited in collaboration with Google Cloud. The center will use AI platforms such as Google Cloud, Vertex AI, Gemini Enterprise. The students will have access to humanoid and companion robots such as your AI robot, Unitree GI, augmented reality, virtual reality glasses, IoT kits, Raspberry Pi systems, so that they can develop their own system and they can start their own business also. Next is International Affairs, students. President of India Draupadi Murmu was on a visit to Botswana from 11th to 13th of November, right? And here she met with the President of Botswana at his office, and here multiple key initiatives were discussed. For example, she addressed the National Assembly of Botswana. Then MOUs were signed here, correct, on pharmacopoeia cooperation enabling harmonization of the pharmaceutical quality standards. Then MOU was signed by India and Botswana to recognize the India Pharmacopoeia IP as a reference book of standards for medicines in Botswana. And 8 cheetahs were donated. That is, President Draupadi Murmu ma'am with Botswana, right, visited Molokandi Nature Reserve, where she donated these 8 tiger reserves. 8 cheetahs, not tiger reserve, 8 cheetahs. Next is, students, banking and finance. Axis Bank hosted the Multi-City Knowledge Series Evolve in Kozhikode, Kerala. I repeat, recently Axis Bank, correct, they have organized the 10th edition of Evolve. This is a flagship multi-city knowledge series for MSMEs in Kozhikode, and this will be empowering whom? They will be empowering the MSMEs here. This is the 10th edition. There is a theme also, students, that I need you all to remember. MSME is powering the $10 trillion economy. MSME powering $10 trillion economy. This is the theme here for this Evolve, that is the 10th edition of the Evolve, organized by Axis Bank, where in Kozhikode, Kerala. Next, SBI to discontinue M-Cash facility on online SBI and YONO Lite from 1st of December. I repeat, State Bank of India announced that M-Cash sending and claiming facility on online SBI and YONO Lite platforms will be discontinued on 30th of November, with services becoming unavailable from 1st of December 2025 onwards. Correct? Take a note of this. Here you will be seeing that which will be more affected, that is M-Cash for both send and claim. Then platforms that will be affected here is online SBI and YONO Lite. Here is what is the purpose? To make a shift to a secure and widely used platform modes. Right, students? Next is economy and business. INDRA, that is India Ratings and Research, they projected India's GDP for the second quarter of FY26 at 7.2%, led by private consumption. Correct? Take a note of this. Next is awards and recognition, students. Renowned art director and Padma Shri awardee Thota Tharani has conferred with the France Chevalier Award. It is one of the France's highest civil honor in the field of arts and culture. Correct? It is the Knight of the Order of Arts and Letters. It was awarded by French government to whom? To Padma Shri awardee and renowned Indian director Thota Tharani. Take a note of this. Moving on. Next is appointment and resignation, students. Ministry of Personal Public Grievances and Pension.
they have extended the Malika Srinivasan's tenure as PESB, that is your Public Enterprise Selection Board's chairman till November 2026. Correct? And you can see here a full year extension has been granted. Next is science and tech students. Godrej has delivered the first human-rated L110 stage Vikas engine to ISRO for Gaganyaan project. Correct. So what is the name of this? It is first human-rated L110 stage Vikas engine. It will be to ISRO's Liquid Propulsion System Center in Bengaluru, Karnataka. It is for India's Gaganyaan crewed space flight program. Right, students? Take a note of this. Next, also, if we talk about this Gaganyaan mission, it will carry crew module into Earth's orbit and safely return the astronauts by 2027. Next is DRDO's NSTL, that is New Space India. Naval Science and Technology Laboratory, I correct myself. What is this? DRDO's NSTL. NSTL is your Naval Science and Technology Laboratory, that is of DRDO. Right? They have successfully developed a new generation man-portable autonomous underwater vehicle. It is designed specifically for the mine countermeasure operations, right? So that we can carry out and nullify the mines that are in the underwater, right? This will be helping in real-time detection of these mine-like objects, correct? It will be have a rapid response maneuverability, right? Here you will be seeing it will enhance the situational awareness underwater. So it is DRDO's NSTL. They have developed this new generation of NP AUVs for mine warfare. Next is related to sports students. 24th Asian Archery Championship was held in Dhaka, Bangladesh lately. Right, it was from 8th to 14th of November, and this is for the third time that Bangladesh hosted this Asian Championship for archery. Right, here India and South Korea, they both tied with 10 medals, with each secured 5 medals in recurve and compound strategies. Right, 6 gold were won by them and 3 silver and 1 bronze. Correct, by India. Correct, take a note of this. And this was a 7-day long tournament that was organized by Bangladesh Archery Federation. It was sponsored by Citigroup. And here more than 200 archers from 30 countries took part in the event. Next, and this is the 24th edition of the Asian Archery Championship. Next, students, is obituary. Renowned environmentalist and Padma Shri awardee Shalu Marada Thimakka has recently passed away, as you can see here in the picture. She was honored with Padma Shri in 2019. Right? She is also known as the Tree Women in India. Tree Women of India. Right, students? She passed away at the age of 114 in Bengaluru, Karnataka. And she was born in 1911. She was honored with Padma Shri, that is India's 4th highest civilian award, in 2019 for social work. Moving on, students. Next is important is World Usability Day, observed on 13th of November, and it is celebrated every year on 2nd Thursday of November month. On 2nd Thursday of November month. Right? Take a note of this. And this day is also known as Make Things Easier Day. Also, this highlights the importance of usability, accessibility, and user experience in design, encouraging the creation of the products. Also, this year it was the 20th anniversary of this day that was observed on 13th of November, as this is the 2nd Thursday of the November month. Moving on, students, next is Children's Day or Bal Divas, observed on 14th of November. And this day is observed basically on the birth anniversary of Jawaharlal Nehru ji, the India's first Prime Minister. And this highlights the love for children that he had and the importance of nurturing the younger generation. This year it was 136th anniversary of the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru ji. There is a theme also, students, for this day that you need to remember: for every child, every right. Next, that's all for the day. Next part is your revision part that will be quite beneficial for you all. So let's move to it, and do mark the important points, students. Do take notes, as they will be quite beneficial while revising.
मेंशन करो वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीवन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को, जो कि फ्लैग ऑफ किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इन सितंबर इन मुंबई। सो मेंशन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जो अनवेल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर के महीने में UIDAI ने अभी MEITSI के साथ मिलके सीता स्कीम लॉन्च करी, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। पूछा जा रहा है यूडाई ने अंडर METIY ये लॉन्च किया। क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया MEITY स्टार्टअप्स हब एंड UIDAI के साथ एक MOU, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सीता स्कीम के उसको फर्दर ले जाया जा सके। तो वो नास्कॉम रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। अंडर दिस MSH यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल मेंटरिंग इंक्यूबेशन एक्सेलरेटर सपोर्ट स्टार्टअप्स को। एंड नास्कॉम अपना जो कनेक्शन है, जो ग्लोबल आउटरीच है, राइट, जो इनका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोलें तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्राजील के साथ ड्यूरिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेराल्डो एल्केमिन्स विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी रहेगी, वो है महिंद्रा ग्रुप, राइट। एंड C390 मिलेनियल एयरक्राफ्ट के लिए ये बेसिकली आपका अग्रीमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितनी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट की कपास क्रांति मिशन के लिए। कपास क्रांति मिशन क्या है, हाई यील्डिंग कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि कपास क्रांति किस क्रॉप के लिए से एसोसिएटेड है, तो ये कॉटन से एसोसिएटेड है, राइट। तो कितनी फंडिंग अभी एलोकेट की, 600 करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ पे एलोकेट की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंडर द ओल्ड गाइडलाइंस ऑफ PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। मैक्सिमम फंडिंग कैप क्या रहेगी फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो ओल्ड गाइडलाइंस के अंदर 20% है। देखो ये स्कीम क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े पानी से हम ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकें, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ हम कर सकें, वाटर को वेस्ट ना कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें एंड उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके ग्रोथ ला सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, अक्टूबर के महीने में 8वां सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स देखने को मिला। कहां पर हुआ, ये गुवाहाटी असम में हुआ। एंड यहाँ पे वनीला कोरिएंडर जो कि है ड्राइड सीड्स एंड लार्ज कार्डमम, इनको फाइनलाइज करा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइसीज आ जाती हैं ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड के अंदर, वो 19 है। नेक्स्ट, नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी, वो है इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट, ये आपकी असॉल्ट राइफल है। एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी PLR सिस्टम, अदानी PLR सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई, 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने MOU साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी इंडिया की क्या रैंक रहेगी, इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है, 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया, सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया। एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है, 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहाँ पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ए हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको, वो है कौन, किनके द्वारा चेयर किया गया था, तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा जयातिसा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टेब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री, वो है पनामा, राइट ऑप्शन है पनामा, एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, नायरोबी कीनिया में, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific Region along with वू सुंग चू जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया, कौन सा टर्म रहेगा, क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका, तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें, फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल, राइट। इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है अगर हम देखें, यूएस एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख ही देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स देन 6th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ यूएसए, फिर यूएसए के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया। फॉरेस्ट गेन में मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा। नेक्स्ट, चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZDN पार्टनर्स। तो चूज द फाइनेंशियल सेंटर, वो कौन सा फाइनेंशियल सेंटर रहेगा, वो है मुंबई, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता। न्यूयॉर्क टॉप पर, देन लंदन सेकेंड पर, हांगकॉन्ग थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पर, जिफ्ट सिटी 6th पर, देन मुंबई 7th एंड देन इट इज दिल्ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लैंडिंग बढ़ सके, उनको हम ज़्यादा लोन दे सके ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट कर सके अपने एरियाज़ में। तो $3 बिलियन का ये सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये पहला है वर्ल्ड बैंक के साथ एंड छठा है विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट, बेसिकली होता क्या है एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट। एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है ताकि एक तरीके का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिससे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ये अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हैं बाय स्वैपिंग एक्सपोजर फ्रॉम द कंट्रीज विद लार्ज सॉवरेन लोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने कंस्टिट्यूट की एक वर्किंग ग्रुप दैट प्रपोज इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन फीस फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सच एज NSE क्लियरिंग लिमिटेड इन अक्टूबर। सो हु हेडेड द सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप, RS गांधी जी के द्वारा हेड की गई इसको, राइट। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, राइट, जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो किनको ऑनर किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से, हु वाज ऑनर्ड,
अबू सुफियाना खारखरोव। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता फॉर हिज बुक टाइटल द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो किनके द्वारा जीता गया? ये हैं सुनील अमृत। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनको कन्फर किया गया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉन नीरज चोपड़ा इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल किस वॉलंटरी फोर्स ऑफ इंडिया में? टेरिटोरियल आर्मी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर आफ्टर अ मिलिट्री कूप कन्फर्म्ड बाय द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर। तो हु वॉज स्वॉर्न इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर? वो है माइकल रेंड्रियानी। नेक्स्ट, अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा कि रीशफलिंग हुई है कैबिनेट की। 19 तो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं एंड 6 को रिटेन किया गया, तो टोटल है 25। पूछा जा रहा है कौन बने हैं 5वें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो कौन बने हैं? वो हैं हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अक्टूबर के महीने में, जो कि फर्स्ट वीमेन बनी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन? वो हैं शांता रंगस्वामी, राइट, फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टेन्योर बताओ जस्टिस प्रतिभा एम सिंघी का ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस पे। तो इनका टर्म कब से कब तक रहेगा? 2025 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। फिर आ जाते हैं, किनको इलेक्ट किया गया जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर? वो है सनाए तकाइची। ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगे शिगुरु इशिबा को। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ कितने ऑल्टीट्यूड से इसको टेस्ट किया गया? तो 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडर्स के द्वारा ही इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायणन जो कि चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने अनाउंस किया इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 व्हाइल इसरो एम्स टू लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मून मिशन बाय किस साल तक? तो गगनयान 2027 में है और इंडिया इसरो एम कर रहा है पहला क्रूड मून मिशन जो कि मून पे इंसान को भेजने की बात की जा रही है, कब तक? 2040 तक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फाइटर जेट दैट अनवेल्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह इन अक्टूबर एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिट्स नासिक फैसिलिटी। तो वो फाइटर जेट कौन सा है? वो है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। इसके बाद आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जो कि रिप्रेजेंट किया गई बाय ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस के द्वारा। इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है स्विमिंग से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फिर आ जाते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया का बिड टू होस्ट द सैनिटरी एडिशन ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में हमने बिड किया था होस्ट करने का। कहाँ पे होस्ट करने की बात की जा रही है इसको? अहमदाबाद गुजरात में। इवन हमने 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड किया है। लेट्स सी वो कैसे प्ले आउट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वेयर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया एज द टॉर्च बियरर। तो आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, वो कौन सा रहेगा? वो है मिलानो कॉर्टिना 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स। इसके बाद आ जाते हैं उस कंट्री को, नेम दैट कंट्री जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट एवर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग अर्जेंटीना बाय 2-0 इन द फाइनल मैच, जो कि सैंटियागो चिली में हमें देखने को मिला। तो नेम दैट कंट्री, वो कौन सी कंट्री रहेगी? वो है मोरक्को। इसके बाद आ जाते हैं तोमिची मुरियामा, नॉन फॉर इज 1995 वर्ल्ड वॉर II अपॉलोजी टू एशियन विक्टिम्स। इनका निधन हो गया 17 अक्टूबर को। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के? ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 81st प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये जापान के एंड 1994 से लेकर 1996 तक थे ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं शेन निंग यांग, ये चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं एंड नोबेल लॉरेट हैं जिनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। हु वन द 1957 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग व्हाट? फॉर डिस्कवरिंग द पैरिटी वायलेशन इन वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस। फिर आ जाते हैं डॉक्टर एकनाथ वसंत चिंतिस, ये एक पायनियरिंग इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज अर्ली स्पेस प्रोग्राम। इनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। इन विच ईयर इनको सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पद्मा भूषण से इनको 1985 में सम्मानित करा गया था।
फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑल्सो, इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है कब, 23 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट किस कंट्री ने गिफ्ट किया प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स को टू इंडोनेशिया टू हेल्प ट्रीट कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप सीजियम 137, मतलब रेडिएशन को रोकने के लिए, रेडिएशन से टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री ने, ये गुड जेस्चर है इंडिया का कि हमने ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट की टू इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस फिनटेक कंपनी ने अनवेल किया इंडिया का पहला यूनिफाइड कॉर्पोरेट एंड इकोसिस्टम फॉर कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम फॉर बिजनेस इन अक्टूबर मंथ, तो कौन सी फिनटेक कंपनी रहेगी, वो है एनकैश। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टील लिमिटेड, ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिन्होंने रिसीव किया बीआईएस सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीआईएस की फुल फॉर्म हमने यहीं पे देख ली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टील, तो ब्यूरो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म रहेगी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक 2 सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एविएशन ऑन 16 अक्टूबर। तो मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अनवेल किया ये एयरक्राफ्ट, तो महिंद्रा एरोस्पेस के, तो ये पुलिनाम एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया, मार्क करके चलेंगे। इवन विप्रो के द्वारा स्टूडेंट्स अभी एक ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई है, वो भी याद रखेंगे। Next is our homework section, students. First is name that country that abolished the kafala system. And what was this kafala system? Second question, tell me recently, if I ask you which edition of Harbinger. This is an hackathon by RBI Hub, that is Reserve Bank Innovation Hub. Which edition of this Harbinger was held and what was the theme of this? Third question, who is the India's new ambassador to Ireland? Fourth question, tell me which is that INS that took part in the exercise JIMAX. Name that INS. Fifth question, students, when do we observe World Development Information Day? World Development Information Day. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हाउ आर यू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 16 एंड 17 नवंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं MEITY, इन्होंने नोटिफाई किया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स को। देन वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, इन्होंने इनॉग्रेट किया 30वां CII पार्टनरशिप समिट जो कि 14 से 15 नवंबर तक देखने को मिला। देन इंटेलीपार्ट, इन्होंने पार्टनर किया है इंडिया AI मिशन के साथ ताकि युवा AI लॉन्च किया जा सके, युवा AI फॉर ऑल। देन CBFC, इन्होंने मल्टीलिंगुअल मॉडल को लॉन्च किया ऑन सिने प्रमाण पोर्टल। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं। बेसिकली ये रूल्स क्यों आए हैं, देखो अब AI आ गया है। AI को रन करने के लिए, AI को ट्रेन करने के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत होती है, राइट। उस डाटा पे ट्रेन होता है एंड हर इंडिविजुअल का डाटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आज के युग में कोई चोरी ना कर सके, उसका मिसयूज़ ना कर सके, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स यहाँ पर लाए गए हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं आने वाले टाइम को अगर हम देख सकें। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए, MEITY के द्वारा ये नोटिफाई किए गए हैं, राइट। एंड यहीं पे अगर हम देखें रूल 1, 2, 7, 1, 2, देन 17 से 21, ये 13 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे जो कि कवर करेंगे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर्स को। वहीं पे रूल 4 की बात करें, ये रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्लिगेशन के लिए रहेगा ऑफ कंसेंट मैनेजर्स। वहीं पे रूल 3, 5 से 16 एंड 22, 23 ये
अगले 2027 में 13 मई 2027 से लागू होंगे एंड ये बेसिकली आपका कवर करेंगे ऑब्लिगेशन जैसे कंसेंट को, नोटिसेस को एंड डाटा ब्रीच रिपोर्टिंग को, राइट। एंड ये रूल्स ना स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि डाटा एक गोल्ड की तरह काम करेगा। डाटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और हर इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 30वां CII पार्टनरशिप समिट को 14 से 15 नवंबर तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, राइट। तो ये 30वां कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट थी। कब से कब तक हुई? ये आपकी 14-15 नवंबर को हमें देखने को मिली। लोकेशन क्या रहेगी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही हमें देखने को मिली। एंड यहीं पे पीयूष गोयल जी के द्वारा वर्चुअली 2 चीज़ें इनॉग्रेट की गई हैं, एक तो है ड्रोन सिटी एंड दूसरा है ट्विन स्पेस सिटी। एक है ड्रोन सिटी एंड दूसरा है ट्विन स्पेस सिटी, राइट, ट्विन स्पेस सिटीज। ये 2 चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, दोनों आंध्र प्रदेश में रहने वाली हैं। बेसिकली आंध्र प्रदेश को स्पेस कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए ट्विन स्पेस सिटी लॉन्च की गई। एंड UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, इससे हम एक रेवोल्यूशन ला सकें, एक सिटी को ग्रो कर सकें। लॉजिस्टिक सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में, सर्वेलेंस के लिए हम ड्रोन्स को यूज़ कर सकें, इसीलिए ये ड्रोन सिटी लॉन्च की गई। दोनों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में रहेंगी, करेक्ट। एंड ये पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई। दोनों कहाँ पे? 30वें CII पार्टनरशिप समिट के दौरान इनको लॉन्च किया गया। यहीं पे अगर हम देखें तो 2025 की जो ये एडिशन था, जो ये समिट थी, इसकी थीम क्या रहेगी? तो ये थी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ये यहाँ पे थीम रहेगी जिसके ऊपर ये बेस्ड था, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसको CII, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सब के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज कराया गया, राइट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन सिटी 300 एकड़ एरिया में स्पेंड रहेगी, राइट, एट ओरावकल इन कुरनूल आंध्र प्रदेश ये रहने वाली है। एंड ये इंडिया का पहला सेंट्रल हब बनेगा फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जहाँ पे इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। वहीं पे 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी एंड 100% रिम्बर्समेंट मिलेगा ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। फिर ट्विन स्पेस सिटीज़ की बात करें तो ये हाई टेक हब्स बनने वाले हैं जो लोकेटेड रहेंगे इन तिरुपति एंड श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसकी मदद से हम आंध्र प्रदेश को, राइट, यहाँ पर हम स्पेस टेक कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने की बात करते हैं, ताकि जो स्पेस से रिलेटेड जो भी काम हो, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, जो भी इनोवेशन हो, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हुए दिखे, वो यहाँ से आंध्र प्रदेश से होते हुए दिखे, यहाँ के रिसर्चर्स करते हुए दिखे, यहाँ के लोग करते हुए दिखे, यहाँ की इकोनॉमी उससे बेनिफिट लेती हुई दिखे। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंटेलीपैट। इन्होंने पार्टनर किया है इंडिया AI मिशन के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके युवा फॉर ऑल। ये युवा AI फॉर ऑल बेसिकली ये क्या है? यूथ फॉर उन्नति एंड विकास एंड AI विद फॉर ऑल, मतलब बेसिकली यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI फॉर ऑल, मतलब AI की मदद से कैसे हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करा के उनको जॉब रेडी बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेडी बना सकते हैं, राइट। यूथ अगर AI का प्रॉपर अच्छे से यूज करेगा तो वो उनकी मदद करेगा ग्रो करने में, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिकली बट एज अ सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज हम देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है AI की मदद से, राइट। तो यूथ इनको यूज कर सकते हैं अपनी फर्दर रिसर्च को ग्रो करने में, अपनी सोसाइटी को ग्रो करने में, तो ये गेम चेंजर रह सकता है, राइट। इससे हम देखेंगे इस पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली इंटेलीपैट क्या है? ये एक AI प्लेटफॉर्म है जो कि लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म रहता है, राइट। इन्होंने यहाँ पे इंडिया AI मिशन के साथ पार्टनर किया ताकि स्किलिंग के ऊपर बात की जा सके, यूथ को हम एम्पावर कर सकें, उनको स्किल्स एम्पार्ट करी जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स CBFC। इन्होंने अभी लॉन्च किया मल्टीलिंगुअल मॉडल ऑन ई-सिनेप्रमान पोर्टल, राइट। ये क्या है? ई-सिनेप्रमान पोर्टल। तो इसका एम क्या रहेगा बेसिकली इस मल्टीलिंगुअल मॉडल का लॉन्च करने में, ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे एक ज़्यादा रीच उनको मिल सके, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि AI की मदद से मल्टीलिंगुअल कुछ भी चीज़ प्रोवाइड करना इज़ नॉट डिफिकल्ट। इवन हम देखते हैं जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे भी मल्टीलिंगुअल मॉडल सपोर्ट किए जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन एक बैरियर ना रह सके। इवन जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकें एंड बेटर डिसीजन कर सकें। एंड यहीं से बेसिकली जो नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है ये एक ऑप्शनल फीचर रहेगा इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो एनेबल करती है एप्लीकेंट्स को कि ये सबमिट कर सकते हैं फिल्म्स को इन वेरियस लैंग्वेजेस थ्रू अ सिंगल यूनिफाइड एप्लीकेशन।
नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया एआई इंक्यूबेशन सेंटर को एट डीपीएस जो कि आरके पुरम में है इन न्यू दिल्ली। देखो एआई इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं जहां पर हम स्टार्टअप्स को ये ग्रो करने का काम करते हैं, इनको मेंटर किया जाता है, इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको जो भी हेल्प की जरूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि फर्दर वो ग्रो कर सकें, राइट। इन रिटर्न जो इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराता है वो कुछ परसेंटेज उस कंपनी का, उस स्टार्टअप का अपने पास रखता है एज अ शेयर होल्डर, राइट। तो इससे होता क्या है कि दोनों का बेनिफिट होता है, इनको इक्विटी मिल गई, इनको इन्वेस्टमेंट मिल गई, दूसरी तरफ स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत मिल गई, राइट, उनको मेंटरशिप मिल गई, उनको एक स्पेस मिल गया जहां पे वो अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं, राइट, अपने स्टार्टअप के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट, एंड एक मार्केटिंग भी हो जाती है उनकी, जिससे काफी दोनों को बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहीं पे हम देखेंगे ये इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा डीपीएस आरके पुरम में, जहां पे एआई इंक्यूबेशन सेंटर रहने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कई सारे स्टार्टअप्स यहां पर ग्रो होते हुए दिखेंगे। स्टूडेंट्स यहां पे रोबोट से लेके ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आईओटी, एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, इन सब के ऊपर यहां पे काम करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम अभी विजिट पे थी टू बोस्टवाना फ्रॉम 11 टू 13 नवंबर, एंड इनकी विजिट के दौरान कई सारे एमओयूज यहाँ पे साइन होते हुए दिखे। फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी एड्रेस किया नेशनल असेंबली ऑफ बोस्टवाना को, देन फार्माकॉपिकल कॉपरेशन देखा, मतलब फार्माक्यूटिकल इक्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ग्रो करने के लिए, राइट, कॉपरेशन लाने के लिए, इंडियन की मेडिसिन वहाँ पे यूज हो सकें, इंडिया के प्रोसीजर्स वहाँ पे यूज हो सकें। इवन एक एमओयू साइन किया गया बाय इंडिया एंड बोस्टवाना टू रिकॉग्नाइज इंडिया का फार्माकोपियो आईपी एज अ रेफरेंस बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन इन बोस्टवाना, राइट, एंड यहीं पे ये 18th कंट्री बन गई जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया आईपी को एज अ फार्माकोपिकल स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, करेक्ट। यहीं पे फिर हम देखेंगे 8 चीतास को डोनेट किया गया टू बोस्टवाना इंडिया के द्वारा, राइट। तो इससे क्या है, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं, दोनों कंट्रीज साथ मिलकर कॉपरेशन के साथ आगे ग्रो होती हुई दिखती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। एक्सिस बैंक इन्होंने होस्ट किया मल्टी सिटी नॉलेज सीरीज इवॉल्व को, ये कोझिकोडे केरला में हमें देखने को मिला। इसका 10th एडिशन हमें अभी यहाँ पे देखने को मिला है, तो मार्क करके चलेंगे इवॉल्व का, राइट। ये एक फ्लैगशिप मल्टी सिटी नॉलेज सीरीज है फॉर एमएसएमईज, इससे एमएसएमईज ग्रो होते हुए दिखेंगे, एमएसएमईज को काफी बेनिफिट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली इससे होगा क्या, जो एक हमारा एम है कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी कर बना सकें यूजिंग एमएसएमईज, राइट, उसको अचीव होता हुआ हम यहाँ पे देख सकेंगे, उसको एक बहुत बड़ा पुश देखने को मिलेगा, राइट। तो ये है इवॉल्व, करेक्ट, किसके द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका 10वां एडिशन था, कहां पर हमें देखने को मिला, कोझिकोडे केरला में हमें यह देखने को मिला एमएसएमई एम्पावरमेंट के लिए, करेक्ट। एंड इसके अंदर हम देखेंगे 10,000 से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसबीआई ने डिसकंटिन्यू किया एम कैश फैसिलिटी को ऑन ऑनलाइन एसबीआई एंड योनो लाइट फ्रॉम 1 दिसंबर, राइट। आई रिपीट, एसबीआई ने अनाउंस किया दैट द एम कैश सेंडिंग एंड क्लेमिंग फैसिलिटी ऑन ऑनलाइन एसबीआई एंड योनो लाइट प्लेटफॉर्म्स ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगी 13 नवंबर से, एंड द सर्विस विल बी अनअवेलेबल फ्रॉम 1 दिसंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे स्टूडेंट्स। अभी इंदिरा जो कि है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी फॉर सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY26 कितनी 7.2%, राइट। ये बता रहे हैं कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो काफी स्ट्रांग होती हुई हमें दिख रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हुए दिख रहे हैं, एंड विद ऑल दिस हम देख रहे हैं कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे स्टूडेंट्स। रिनोन्ड आर्ट डायरेक्टर एंड पद्मश्री अवार्डी थोटा थरानी, इनको कन्फर किया गया फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से। ये वन ऑफ द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, आर्ट्स एंड कल्चर की कैटेगरी में इनसे को सम्मानित किया जाता है, एंड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा इनको ये अवार्ड से सम्मानित करा गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, कौन ये है, पद्मश्री अवार्डी एंड रिनोन्ड इंडियन आर्ट डायरेक्टर थोटा थरानी जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया मल्लिका श्रीनिवासन टेन्योर एज PESB दैट इज पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड चेयरमैन अंटिल नवंबर 2026। 1 साल का इनको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया है, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है ये है मल्लिका श्रीनिवासन जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। गोदरेज ने डिलीवर किया पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन इसरो को फॉर गगनयान प्रोजेक्ट। देखो गगनयान प्रोजेक्ट ह्यूमंस को, राइट, क्रूड मिशन रहने वाला है, राइट, एंड इसके लिए ही ये ह्यूमन रेटेड
L110 स्टेज विकास इंजन को अभी डिलीवर किया गया इसरो को। इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में बेंगलुरु कर्नाटका में डिलीवर किया गया। ये एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया के गगनयान क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए। सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टेक अ नोट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डीआरडीओ के एनएसडीएल। ये डीआरडीओ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है एनएसडीएल। एनएसडीएल क्या होता है? एनएसडीएल है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, एंड इन्होंने अभी डेवलप किया है नेक्स्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। बेसिकली ये क्या है? अंडर वाटर व्हीकल रहेगा, एक तरीके का ये ड्रोन रहेगा जो कि पानी के अंदर रह जाएगा। एंड माइन वॉरफेयर, मान लो कोई माइन है पानी के नीचे, राइट, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च की गई। करेक्ट? तो ये डीआरडीओ का एनएसटीएल ने डेवलप किया है नई जनरेशन का मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन वॉरफेयर। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स। अभी 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की हम बात करेंगे। बांग्लादेश ढाका में ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, एंड दिस इज फॉर द थर्ड टाइम कि इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया है। करेक्ट? बांग्लादेश के द्वारा। यह है 24वां एडिशन ऑफ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। करेक्ट? एंड इंडिया एंड साउथ कोरिया ने यहाँ पे टाई किया विद 10 मेडल्स ईच, दोनों के 10 मेडल रहे। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो 6 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज रहेंगे यहाँ पे। करेक्ट? इंडिया के, एंड इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप भी किया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स फिर ऑब्यूटरी के ऊपर। रिनॉन एनवायरमेंटलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी सालू मरादा थिमक्का, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको एक बड़े फेमस नाम से जाना जाता है, एंड ट्री वीमेन ऑफ इंडिया, ट्री वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से, राइट? ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2019 में फॉर हर फील्ड ऑफ सोशल वर्क, एंड ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्मश्री। करेक्ट? 114 साल की उम्र में इनका भी निधन हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, 13 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं यूजेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट? एंड ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ, राइट? सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ ये ऑब्जर्व किया जाता है यूजेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट? यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो सके, एंड जो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम सस्टेनेबिलिटी ला सकें। इस बार इसकी 20वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी, राइट? एंड 13 नवंबर को 2025 में ये डे ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि 13 नवंबर को ही सेकेंड थर्सडे आता है नवंबर मंथ का। इसकी एक थीम याद रखेंगे, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। पहली बार 10 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया था 2005 में, क्योंकि सेकेंड थर्सडे नवंबर मंथ का 10 नवंबर को था 2005 में। नेक्स्ट आ जाते हैं चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस। 14 नवंबर को यह डे ऑब्जर्व किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एंड उनका जो लव था बच्चों के लिए, एंड वो जो इंपॉर्टेंस देते थे बच्चों को, ताकि वो ग्रो करेंगे, वो सीखेंगे, तभी हमारा फ्यूचर, हमारा देश आगे बढ़ेगा, राइट? इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड फॉर हिज लव फॉर चिल्ड्रन ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इस बार इसकी थीम याद रखेंगे इस डे की, नेशनल चिल्ड्रंस डे या फिर बाल दिवस की, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। Next is identify the incorrect statement regarding the 78th session of the World Health Organization Regional Committee for Southeast Asia that was held in Colombo, Sri Lanka. If we look at the option B is right, C is right, A is wrong. A is saying that the session was chaired by Dr. Tedros Ghebreyesus, the Director General of WHO. Is it so? No. This session was chaired by whom? This is the question that I want you to remember. This was held, or this session was chaired under the chairmanship of Nalinda Jaya Tissa, right? And this is the Sri Lanka's health minister, right? So Dr. Tedros Ghebreyesus he was not the chair of this session. Now option A is right. Next is name the country that along with India established a 20-member inter-parliamentary friendship group in October to enhance parliamentary cooperation and bilateral relations. So which is it? It is Panama. Take a note of it. Next, identify the UN organization that released a report that is high risk forest, high value returns
a co-benefit assessment for the decision makers in October that highlights 391 million hectares of tropical forest are at a high risk of deforestation. So identify that UN organization that has released this report. It is UNEP, that is United Nations Environment Program. Next, how long will India's Hitesh Kumar S. Makwana, elected to serve as the co-chair of the United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific, along with Woo Suk Chu from Republic of Korea in October? So, how long will India's Hitesh Kumar elected to serve the co-chair here? So, it is for the term 2025 to 2028. Next, according to the Mercer Charter Financial Analysts Institute Global Pension Index, mention the country which is not among the top 5 in the pension index. It is Philippines. Right? It is not among the top 5. Netherlands first, then Iceland second, then Denmark it is third, Singapore it is fourth, Israel is fifth. Next, according to the World Directory of Modern Military Aircraft rankings, which of the following is not among the world's top 5 most powerful forces? It is China's People's Liberation Army Force. Right? Take a note of this. Who is on the top? United States Air Force, then United States Navy, then Russian Air Force, then United States Army, then United States Marine Corps, and on 6th position is Indian Air Force. Next, mark the correct statement regarding the key findings of the Global Forest Resource Assessment 25 released by Food and Agriculture Organization in October month. Which of the following is the correct statement it is asked? So A is right, B is right, C is wrong. C is saying that in terms of the global forest gain, Russia ranks first, followed by India and China. Is it so? So first remember, Russian Federation is on top, then Brazil is on second, then Canada on third, then USA fourth, then it is fifth China, and on sixth position is our India. Next, choose the financial center that is not among the top 5 in the 38th Global Financial Center Index released in October by China Development Institute and ZN Partners. So choose the financial center, right, that is not among the top 5. So Mumbai, India is not among the top 5 here. New York, USA on top, then London on second, Hong Kong on third, Singapore on fourth, then San Francisco on fifth, and GIFT City, right, of India is on sixth position. Take a note of this, students. And then it is Mumbai, and then it is New Delhi. Next is, what is the total value of the sovereign exposure exchange agreement signed between the Asian Development Bank and World Bank in October to boost the lending for the developing nations? So it is $3 billion. Total value of the sovereign exposure exchange agreement is $3 billion. This EEA, that is exposure exchange agreement, right, it is acts as a risk management tool, and it enables the multilateral development banks to lower the portfolio concentration by risk by swapping exposure from countries with large sovereign loans. And this is Asian Development Bank's first EEA with World Bank and 6th EEA with other multilateral development banks. Next is, who headed the SEBI constituted working group that proposed increasing transaction fees for clearing corporations such as NSE Clearing Limited in October 2025. So who headed this SEBI constituted working group? It was headed by R.S. Gandhi. It was headed by whom? It was headed by R.S. Gandhi. This move, it will bolster the financial independence of these corporations and strengthen the balance sheet. Here the fee structure, if we see, currently NSE, they are receiving nearly 5 to 6% of the fees that NSE collects from the members. A revision of the charge for the clearing corporation is expected to increase the share to 25% or even a little higher. Next is, who was honored with the BRICS International Award 2025 for the contribution to spiritual education, cultural development, and maritime innovation at an event hosted by State Duma of Russian Federation in Moscow in October 2025. So who was honored here with BRICS International Award? This is the direct question that can be asked, and this is an important question. So Abusyopan Kharkarov was honored here. He is the former Deputy Prime Minister of the Republic of Dagestan, who was honored with the BRICS International Award. This is for his contribution to spiritual education, cultural development, and maritime innovation. Next,
who won the 2025 British Academy Book Prize in October for his book titled The Burning Earth: An Environmental History of the Last 500 Years. So, who won the 2025 British Academy Book Prize? It was won by Sunil Amrit. Right? Indian origin historian Sumrit Amrit has won the 2025 British Academy Book Prize for the book that is The Burning Earth: An Environmental History of the Last 500 Years. Next is in October, Union Minister Rajnath Singh was conferred with the honorary rank of Lieutenant Colonel upon Neeraj Chopra in Voluntary Military Force of India. In which voluntary military force of India? So, tell me, Union Minister Rajnath Singh conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel to Neeraj Chopra for which voluntary force of India? It is Territorial Army. Next, who was sworn in as the transitional president of Madagascar in October after a military coup confirmed by the High Constitutional Court of Madagascar? Name that individual. Right option is Michael Randrianirina. Right, Colonel Randrianirina. Right, Michael Randrianirina. Right, was appointed here. Take a note of this. Next is in October, Gujarat state government under the Chief Minister Bhupendra Patel expanded their cabinet, including 19 ministers, 19 new ministers, and retaining the 6, bringing the total strength to 26. So 19 are new here and 6 are retained. So the total strength become 26. Who was elevated here as the Deputy Chief Minister, becoming the 5th Deputy Chief Minister of the state of Gujarat? So right option is Harsh Ramesh Kumar Sanghvi has been appointed as the Deputy Chief Minister of Gujarat. Take a note of this, students. Next is who was elected as the President of the Indian Cricket Association in October, becoming the first woman to lead the organization. So, Shantha Rangaswamy was elected as the President of Indian Cricket Association. Take a note of this. Next is mention the tenure of Justice Pratibha M. Singh of Delhi High Court as the chair of the World Intellectual Property Organization Advisory Board as announced in October. If we look at the option, right option is for what is the term? It is 2025 to 2027. Right option is this. Next, who was elected as the Japan's first female Prime Minister in October? Right option is Sanai Takaichi. Correct? Take a note of this. Direct question. And she succeeded whom? She succeeded Shigeru Ishiba. Next, in October, Emirates New Development Bank acquired how much % stake in RBL Bank through a preferential issue of shares worth 26,850 crore rupees? It is 60% share here, right? And what is the amount it was acquired for? 26,850 crore rupees. Next, in October, DRDO, they successfully tested the indigenously military craft parachute system with Indian Air Force from an altitude of how much? From an altitude of 32,000 feet. The test was conducted by the test jumpers of the Indian Air Force, right? Take a note of this. Next is in October, Dr. V. Narayanan, the chairman of ISRO, announced that India's maiden human space flight mission, that is Gaganyaan, is scheduled for 2027, while ISRO aims to launch their first crewed moon mission by which year? So ISRO is planning to launch their first crewed moon mission by 2040, and Gaganyaan mission, that is the maiden human space flight mission, is planned by 2027. Next, name the fighter jet that was unveiled by Union Minister for Defence Rajnath Singh on 17th of October at Hindustan Aeronautics Limited facility, that is in Nasik facility. So which is that fighter jet we are talking about? It is Tejas Mark 1A fighter jet. Next, identify the country that represented by Olympic champion Ariana Titmus, who announced her retirement from competitive swimming. So name that country, identify that country we are talking about. It is Australia. She is from Australia. Next, in October, Union Minister of Home Affairs, that is Amit Shah, he recently announced that Commonwealth Association has approved India's bid to host the sanitary edition of 2030 Commonwealth Games. In which Indian city will the event will be hosted? That means now India will be hosting the 2030 Commonwealth Games, that will be in Ahmedabad, Gujarat, right? That means the Commonwealth Association, they have approved India's bid that we can now host this event in India, and that too in India, where it will be hosted in Ahmedabad, Gujarat. Important students, take a note of this. Next, also we have bid for the 2036 Olympic Games also. Let's see how that plays out.
Next, identify the international multi-sport event where Indian Olympic gold medalist Abhinav Bindra was appointed as the torchbearer in October month. So, identify that international multi-sport event. It is Milano Cortina 2026 Winter Olympics. Next, name the country that secured the first ever FIFA Under-20 World Cup title after defeating Argentina by 2-0 in the final match held in Santiago, Chile. So, name that country that secured the first ever FIFA World Cup title. It is Under-20 FIFA World Cup title. It is Morocco. Next is Tomichi Murayama, right, known for his 1995 World War II apology to the Asian victims who passed away on 17th of October, was the former Prime Minister of which country? Was the former Prime Minister of Japan. Also remember, he served as the Japan's 81st Prime Minister, and it was from 1994 to 1996. Next is Chen Ning Yang, the Chinese-American physicist and Nobel laureate who passed away in October, won the 1957 Nobel Prize in Physics for discovering what? So it was for discovering parity violation in weak nuclear interaction. And remember the name, remember the year in which he won the Nobel Prize in Physics and the reason for which he won. Next is Dr. Eknath Vasant Chintis, a pioneering Indian space scientist and key architect of India's early space program, passed away in October, in which year he was honored with the Padma Bhushan Award for his contribution in science and technology. So, Dr. Eknath Vasant Chintis, right, a pioneering Indian space scientist and key architect of India's early space program, passed away in October. In which year he was honored with Padma Bhushan? He was honored with Padma Bhushan in 1985. Right option is option 3. Next is when is International Snow Leopard Day, also known as the World Snow Leopard Day, observed globally to raise awareness about the conservation of snow leopard, that is Panthera uncia. So it is on 23rd of October. Right, first time observed in 2014. Next, in October, which country gifted Prussian blue capsules to Indonesia to help treat contamination caused by the radioactive isotope cesium-137? So which country gifted the Prussian blue capsules to Indonesia? It was gifted by our country, India, right? And it was a very good gesture. Next is which fintech company unveiled India's first unified corporate card ecosystem for businesses on October? It is Encash. Correct. Next, NMDC, National Mineral Development Corporation Steel Limited. It became India's first company to receive the BIS certification for hot rolled steel used in the pipeline transportation in October. Question is, in the abbreviation BIS, what does the letter B stands for? It is Bureau. Bureau, BIS, that is your Bureau of Indian Standards, right? So I for India, Indian, and S for standards. Correct. And this certification will ensure the NDMC steel's product meet the highest national quality and safety standards. Next is our homework section, students. First is name that country that abolished the kafala system. And what was this kafala system? Second question, tell me recently, if I ask you which edition of Harbinger. This is an hackathon by RBI Hub, that is Reserve Bank Innovation Hub. Which edition of this Harbinger was held and what was the theme of this? Third question, who is the India's new ambassador to Ireland? Fourth question, tell me which is that INS that took part in the exercise GIMAX. Name that INS. Fifth question, students, when do we observe World Development Information Day? World Development Information Day. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.